Hello students, welcome back. So we are doing PYQ of unit number 7. Today we will doing 2023 shift 1 and shift 2 polity unit question. Okay, we are conducting UCG net PYQ series. These are the question of June 2023. Okay, the first question here: which of these postulate the introduction of elective president in municipalities? लॉर्ड रिबन या लॉर्ड मायो या बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट या गुजरात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट? ओके, द आंसर विल बी लॉर्ड मायन रेवोल्यूशन 1870. Okay, option B. Moving on to the next question. In which year did the amendment of constitution extend the Panchayati Raj provision to the scheduled area? That will be 1996. Option number third. Next question, third. A limited franchise was introduced. Which of the following act? Indian Council Act, Government of India Act, India Independence Act, या none of these above? The answer will be फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1982 में क्या है जो लिमिट कर दी गई थी फ्रेंचाइज, मतलब यहाँ पे लिमिट डाल दी थी वोटिंग पर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not include the right of life under article 21 of the Indian constitution implemented by the supreme court? की इनमें से आपको ये बताना है कि जो आर्टिकल हमारा आर्टिकल जो 21 है इसके अंदर कौन सा राइट नहीं आता है? प्राइवेसी आता है, अगेंस्ट ऑफ पब्लिक हैंगिंग आता है, गुड हेल्थ आता है, पर राइट टू सोसाइटी इसके अंदर नहीं आता. ऑप्शन ए. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटी रिकमेंड एस्टेब्लिशमेंट लोकपाल एंड लोकायत फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट एनआरसी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग? ये मैंने समझाया था आपको जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कर रहे थे. ओके, और लेक्चर में कि ये प्रोसीडिंग इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, तो स्टार्टेड क्वेश्चन रिक्वायर्ड एन oral answer and supplement question can follow. Short notice question is asked by giving a notice of less than 2. Yes, correct है. Adjournment motion need to be spot? No, ये गलत है. The zero hard जो start होता है immediately after the question hour and last until the end of the day. Yes, option will be fourth is the correct one. Me, sorry, fourth the second is the correct answer. Option number B says wrong. Five, sixth question. Seventh, which of the following statement correct about the Supreme Court of India? Under the Arbitrary and Conciliation Act 1996, international commerce arbitrate can be initiated in the Supreme Court. The Supreme Court has a special advisory jurisdiction under Article 143. Article 23 of 32 of the Constitution extends the original jurisdiction of Supreme Court with regard to the performance of fundamental right. All statements are correct. Okay, option will be 4. Next question will be this. Which of the following statement is correct regarding the Central Information Commission? This is related to right to information. Although ये unit number 10 का question है, but I added in the unit number 7. No issues. Okay, I will. तो जो चीफ कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूट है वो एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन अंडर प्रोविजन एक्ट ऑफ इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, या जो चीफ इंफॉर्मेशन लेक्चर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और 5 कमिश्नर इंक्लूड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होल्ड ऑफिस ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट विच ही एंटर अपॉन ऑफिस. तो स्टूडेंट ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा. ये हमारा जो एक्ट आया था इसमें ऐड किया गया था. ओके, आरटीआई एक्ट आया था ना 2025 में, उसमें ये फॉर्मेशन है. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन है. द कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन वाज वाइड रेवोल्यूशन ऑन इसको. ओके, ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर. 10th क्वेश्चन,
which of the following rules and regulation restrict disclosure of inform इन सॉरी इनमें से कौन से जो रूल्स और जो लॉ है, कानून बताता है कि हमें जो ऑफिशियली इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करनी है? तो ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट नहीं बोलता, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बोलता है, इंडियन सॉरी इंडिया एविडेंस एक्ट बोलता है, और फिफ्थ पे कमीशन बोलता है। तो दैट इज BCD, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द 11th क्वेश्चन, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। 11th मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो इसमें आप ये इसमें बुक्स लिखी हुई है और इसके थिंकर है, ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? यूनिट नंबर आपकी 7 से रिलेटेड, ओके। तो पॉलिटिक्स एंड एथिक्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बुक है? इंडियन पार्लियामेंट किसकी बुक है? फेडरल गवर्नमेंट किसकी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काउंटर स्टोन ऑफ द नेशन, ये लिस्ट है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन है, ये है ग्रेविन ऑस्टिन की। और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमारी है KVC डाइसर की। तो ये भी तो ऑप्शन हमारा बी आ जाता है। फिर इंडियन पॉलिटिक्स हमारी है BL शंकर। और जो पॉलिटिक्स एंड एथिक्स है वो है राजीव भागवा की, ओके। ऑप्शन विल बी बी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है, आपको मैच करना स्टेट ऑफ यूटी और ईयर ऑफ एस्टेब्लिश का भी। ये जो स्टेट है एस्टेब्लिश हुए थे, ये हमारे यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन है, तो ऐड हो गया, ओके। तो नो इशू, दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर यू। तो जो हमारा पंजाब हुआ था वो 1996 में हुआ था, गुजरात 1960 में हुआ था, लद्दाख हमारा 19 में हुआ था, और ये जो तेलंगाना 2014 में हुआ था। तो ऑप्शन विल बी ए का फर्स्ट, ठीक है, बी का सेकंड, ठीक है, सी का थर्ड, ठीक है, डी का थर्ड, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन है, इफ कुछ फॉलोइंग इवेंट है रिगार्डिंग यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो पहले हमारा आया था ये एडिशन ऑफ द बिल, नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल टू द कंफर्मेशन द पार्लियामेंट बी। नहीं नहीं सॉरी, इसका आंसर नहीं, पहले बी नहीं आएगा ना, पहले सी आएगा ना। पहले सी आएगा, एडिशन ऑफ बिल ऑफ राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ए आएगा एस्टेब्लिश ऑफ फेडरल कोर्ट, फिर डी आएगा, और फिर ये आएगा। 13 क्वेश्चन, तो टेल मी द आंसर। आई गेस ए, ए नहीं, बी इज द आंसर, ओके। अब आपको ये जो कमेटीज है, ये क्या पंचायतीज, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मैंने बोला था कि जो ये कमेटी है, ये भी क्या है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेकिंग द क्वेश्चन। तो दिस विल बी क्वेश्चन, ठीक है। ये PYQ है, लेट मतलब ये 2023 के ही तो है, ओके। तो पहले हमारी अशोक मेहता कमेटी आई थी, देन फिर JK राव कमेटी, देन BA, देन फिर CA, BA, फिर LM सिंघवी कमेटी, लास्ट में थंगवन कमेटी आई थी, ओके। तो डेट विल बी आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। दिस इज 15 क्वेश्चन। आपको ये जो लेजिस्लेटिव एक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालने हैं। तो पहले हमारा आया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, नहीं, पहले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, फिर आया था लोकपाल एंड कंज्यूमर। तो बी, ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर है कि हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन रिक्वायर टू मूव अ मोशन टू impeachment ऑफ जस्टिस, दैट इज 50, ओके। सी, which question? This is 16 number question, okay। Now 17 question, कि में से आप इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन बताना रिगार्डिंग स्पेशल पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ द वेरियस स्टेट, ओके। तो महाराष्ट्र में सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड है विदर्भ एंड मराठा वाडा का, या तेलंगाना में सेपरेट स्टेट फॉर रेसर रीजन, या असम में एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ट्राइब्स इन एरिया, मणिपुर रिगार्डिंग एस्टिमेशन हिल इन द एरिया, नहीं, जो ये तेलंगाना का है, ये ऑप्शन गलत है। तो बी इज द इनकरेक्ट आंसर regarding all this question, okay। then फिर गवर्नर इज entrusted, गवर्नर के क्वेश्चन भी आपका ये शॉर्ट टॉपिक होता है, शॉर्ट टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नर प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है रिलेटेड देयर पावर, ओके। दिस इज 18 नंबर क्वेश्चन। तो जो गवर्नर है उसके पास कौन सी पार्टिंग पावर है? सस्पेंड दी सेंटेंस नहीं है, कमिट दी सेंटेंस है, सस्पेंड दी स्टेटमेंट है, कमिट दी
कमिट द सेंटेंस, ग्रेट रेमिशन पनिशमेंट, ग्रैंड पार्डन किस उसके पास नहीं, तो ABC। तो ABC तो नहीं बन रहा, तो आई गेस कहीं डी तो नहीं है, ग्रैंड पार्डन की तो नहीं है, तो आप डी हटा दीजिए, डी हटा दीजिए, डी हटा दीजिए, तो फिर आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। तो हमारा ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये राइट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है हमारा, सिर्फ उसके पास जो प्रेसिडेंट के पास है वो सस्पेंड दी सेंटेंस एंड कम कम म्यूट दी सेंटेंस की पावर है, और कोई उसके पास पावर नहीं है गवर्नर के पास, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी है, ओके। ऐसे इन एलिमिनेट मेथड से भी क्या है, हम क्वेश्चन को क्या है सॉल्व आउट कर सकते हैं, और ये एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ओके। अब 19 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके जो है, ओके। तो राइट टू अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू सब्सटेंस डेवलपमेंट, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू एज ऑफ 16, राइट टू रेपुटेशन, ये इसके क्या है, आपके ऑर्डर है। देयर इज करेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट हमारा आया था इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, करेंगे हम पहले फर्स्ट, उसके बाद एस्टेब्लिश करेंगे फेडरल कोर्ट को, काउंसिल को, उसके बाद फिर हम एडिशन करेंगे, फिर अमेंडमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, सेकंड नहीं है, इसका ऑप्शन है डी। डी इज करेक्ट आंसर। ये नहीं, ओके, डी है इसका। तो यहाँ पर है बेसिकली क्या है, राइट टू ए, राइट टू अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिवलीहुड, और ये रेपुटेशन वाला आता है ABCE, ओके। सेकंड है, ये हमारा नहीं आता इसके अंदर, ओके, ये नहीं आता, नॉट इंक्लूड, ओके, नॉट इंक्लूड अंडर आर्टिकल 21, ओके। 21A के अंदर आता है, ओके। क्वेश्चन है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको बताना रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी में रेफर टू लीगल एंड हायरार्किकल locus of the responsibility. Administration responsibility ethically and normatic connotation. Administration responsibility implied that a public official will adheres and explicitly value the proper uh, administration policy. Both three are correct. Option will be fourth is the correct answer. इसमें आपको बताना कि मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकाउंटेबल है या नहीं है, मतलब अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि जो जनता पूछ रही है, द पीपल वांट टू नो द एडमिनिस्ट्रेशन इज आंसरिंग देयर क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट का क्या है अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, मतलब जवाब दे ही बोलते हैं इसको, ठीक है। जो आप पूछ रहे हो आपको उसका आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा। दिस इज 21 एंड दिस क्वेश्चन आई एम डूइंग, दिस क्वेश्चन आई हैव सीन मेनी टाइम इन 2024, इन 2023 में भी आप देख लो शिफ्ट, ये वन का क्वेश्चन है, इसमें भी आया था, ये दोनों शिफ्ट, ये भी शिफ्ट वन में भी आया था, और एक क्वेश्चन एक और शिफ्ट में आ चुका। तो आई हैव सीन दिस क्वेश्चन मैनी मैनी टाइम, सो बी प्रिपेयर एंड डोंट मेक एनी मिस्टेक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। तो आपका क्या है इसमें, क्या है आपको, जैसे पॉल एप्ले का है, उसका वो क्या बोलता है कि एक्सट्रीमली फेडरल बार्गेनिंग है, और आयरिस जेमी बोलता है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रिंग टेंडेंसी। तो सी का फोर्थ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, आंसर मिल चुका हमारा बी। दो से मिल गया, दो कॉल करते हैं। जो ग्रेविन ऑस्टिन वो क्या बोलता है बार्गेनिंग, ग्रेविन ऑस्टिन बार्गेनिंग से है। और हमारा जो मॉरिस जॉन है वो एक मिनट, यहाँ पे डी का मैं थोड़ा गलत हो गया, डी डी का आएगा फर्स्ट से, ओके, कॉर्पोरेटिव, और मॉरिस जॉन का आएगा बार्गेनिंग से, ओके। दिस इज 22nd क्वेश्चन। आपको ये जो क्रोनोलॉजिकल कुछ केसेस है इनको करना है, तो फर्स्ट मेगा मिलीवा केसेस हुआ था, अब फिर उसके बाद केशवनाथ भारती, सॉरी माय बैड माय बैड, ओके। यहाँ पे क्या है आपको इनको क्या है सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो दिस इज 22nd क्वेश्चन।
तो फर्स्ट हुआ था गोलकनाथ केक, सी। फिर केशवानंद भारती, देन फिर मेन मेनका गांधी, एंड देन मिनर्वा। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। दिस इज 23rd क्वेश्चन। अरेंज दी आपको डीएसपी इन सीक्वेंस में। तो फर्स्ट है विलेज पंचायत का है, फिर राइट टू वर्क है, फिर प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन, एंड फिर लिविंग डिसेंट। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 23, this is 24, and this is okay. 24 question we have only. So which what is the correct chronological sequence आपको इनको बताने हैं। तो पहले हमारे क्या आया था, पहले जॉइंट। तो इसका जो आंसर है वो है जॉइंट। इसमें आपको ये बताने की ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है, ये कौन सी कमेटी कब आई थी। तो फर्स्ट जॉइंट कमेटी आई थी, फिर आई थी हमारी तारकुरे कमेटी आई थी, उसके बाद गोस्वामी एंड देन इलेक्शन कमीशन आई थी। तो अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बी। सो ए इज द करेक्ट आंसर, नॉट बी, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये